गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? आज आपका टॉपिक टुडेज टॉपिक इज द पोटेंशियल मीटर। पोटेंशियल मीटर के ऊपर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। यू कैन सी इन माय थंबनेल द पोटेंशियल मीटर्स explanation and first application comparison of two cells. Okay, so please all of 12th class students be alert and please my screen. टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए हम स्टार्ट कर रहे हैं। पोटेंशियल मीटर। पोटेंशियल मीटर, a potential meter is a device used to measure an unknown EMF. Write down unknown EMF or the potential difference accurately. Okay, यानी कि EMF को फाइंड करने के लिए या पोटेंशियल डिफरेंस की एक्यूरेसी को फाइंड करने के लिए पोटेंशियल मीटर डिवाइस को यूज किया जाता है। वेरी सेंसिटिव डिवाइस। Okay, what is the principle of the potential meter? The principle is the write down. The potential meter is that when a constant current flowing through a wire of uniform cross section area and composition, the potential drop across any length, write down any length of the wire is directly proportional of that length. So V proportional, V is the potential drop. Potential drop is denoted by V. So V is directly proportional length of the potential meter. So proportional sign are removed. The new constant V is equal to Kn. पोटेंशियल मीटर के पिक्चर को आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में देखना, वहां पर 10 बाइट्स इस टाइप से दिए रखे हैं। इस टाइप का जो पिक्चर है वो शो कर रहा है आपके पोटेंशियल मीटर को। ओके, इस पिक्चर को आप ध्यान से वहां पर देखना अपनी एनसीईआरटी की बुक्स में। सो V प्रोपोर्शनल L इज इक्वल टू V इज इक्वल टू Kl। इसको एक्सप्लेन कर लेता हूं पोटेंशियल मीटर को, क्योंकि अब हमारे पास में एमसीक्यूज के रिलेटेड है, बहुत सारे एमसीक्यूज आने वाले हैं। तो अब हर पॉइंट के ऊपर हमारे को डिटेल में डिस्कस करना है। सो एक्सप्लेनेशन ऑफ द ओम्स लॉ। Potential meter is follow the Ohm's law. The Ohm's law is equal to V is equal to IR. R is equal to the factor of R. R is equal to rho L upon A. Rho specific resistance. Okay, या resistivity. L length of wire. A cross section area. Okay, so put this value. The I is equal to rho L upon A. Okay, तो V is equal to एक न्यू फॉर्मूले को भी जनरेट कर रहा हूँ। तो V is equal to I upon A rho L. I upon A is called the current density. Current density is denoted by J. So J is equal to I upon A. It means J rho L. Potential meter current density के ऊपर भी डिपेंड करता है। ये मेन फैक्ट है आपके लिए। ओके, सेकंड देन अगेन इस इक्वेशन को यूज करते हैं। V is equal to I rho upon A L. I rho upon A is called the constant terminology. So V is equal to Kl and K is equal to I rho A is the constant terminology. Okay, so write down all of you. Yes. अब आपके पास में एक ग्राफ प्लॉटिंग का भी आएगा। किस टाइप का? V is equal to IR का जो ग्राफ प्लॉटिंग करता है स्ट्रेट लाइन, तो V is equal to Kl का जो ग्राफ प्लॉटिंग करेंगे कि पोटेंशियल ड्रॉप और लेंथ का जब ग्राफ प्लॉटिंग करेंगे माय डियर, तो वो भी स्ट्रेट लाइन आएगा। कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन। तो V और L, V आपका पोटेंशियल ड्रॉप है, L लेंथ ऑफ द वायर है पोटेंशियल मीटर की, तो आपका ग्राफ कैसा प्लॉटिंग होगा? स्ट्रेट लाइन। ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में नहीं है, ये आपको थोड़ा सा डिटेल में राइट डाउन करना पड़ेगा, एक्सप्लेनेशन भी नहीं है। ओके, सो ऑल ऑफ यू राइट डाउन। Okay, now the K is the constant, is the new name. The K is the K is equal to potential gradient. Potential gradient K, जो आपके पास में K कांस्टेंट है, I rho A, I rho J, या K is equal to आप
पोटेंशियल ग्रेडियंट जो आपके पास में है, इस पोटेंशियल ग्रेडियंट के अंदर, इस पोटेंशियल ग्रेडियंट के अंदर जो आपके पास में है, इसकी जो है डेफिनेशन फाइंड आउट करनी है। तो K इज इक्वल टू आपके पास में फॉर्मूला क्या होगा, V इज इक्वल टू KL, तो K इज इक्वल टू V अपॉन L। ओके माय डियर, तो डेफिनेशन को फाइंड आउट राइट डाउन कर लीजिए। पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ of the potential meter wire is known as potential gradient. Okay, again repeat, potential drop per unit length of potential meter wire, okay, it is known as the potential gradient. The SI unit, what is the SI unit of potential gradient is volt per meter, and practically point of view से practically SI unit is volt per centimeter. Okay, so write down ओके। तो फर्स्ट पॉइंट थंबनेल का क्लियर हो गया, व्हाट इज द पोटेंशियल मीटर। पोटेंशियल मीटर ओनली फॉर द फाइंड आउट द ईएमएफ, अननोन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस एक्यूरेसी। ओके, और पोटेंशियल मीटर को हम यूज करेंगे, या इसका प्रिंसिपल जो यूज करेंगे, उस प्रिंसिपल को पोटेंशियल ड्रॉप इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ द लेंथ ऑफ पोटेंशियल वायर। ओके, सो V इक्वल टू, हमने यहाँ पर V इक्वल टू KL का रोल किया, और K क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। और पोटेंशियल ग्रेडियंट को कैसे डिफाइन करेंगे, तो पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ऑफ द पोटेंशियल वायर। ओके, इससे हम फाइंड आउट करेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट। ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप और लेंथ का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट आपका क्लियर हो गया। पोटेंशियल मीटर का मैंने फिगर आपको ड्रॉ करवा दिया, पोटेंशियल मीटर से रिलेटेड जो है बेसिक प्रिंसिपल आपको फाइंड आउट किया, एक्सप्लेनेशन। सेकंड आपका जो थंबनेल पर पॉइंट देख रहे हैं वो सेकंड पॉइंट है कंपैरिजन ऑफ टू सेल्स। कंपैरिजन ऑफ टू सेल्स को हम पिक्चर को ड्रॉ करेंगे। आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में इस पिक्चर को देखेंगे तो आपके पास है, लेकिन कहीं कंफ्यूजन नहीं हो, पिक्चर थोड़ा कॉम्प्लिकेट है आपके मार्क पर, तो उस पिक्चर को मैं थोड़ा इजी गोइंग में यहाँ पर बना रहा हूँ, आप भी बना लीजिए, क्योंकि हमको जब सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना होता है एग्जाम के अंदर, तो हमारे पास में ऑप्शन यानी कि काफी हम कंपैरिजन ऑफ टू सेल्स, अभी हम टू सेल्स का क्या हम फाइंड करेंगे, ईएमएफ। क्या फाइंड करेंगे, ईएमएफ। ओके, तो कंपैरिजन ऑफ ई टू सेल्स, यानी कि टू सेल्स कौन से होंगे, प्राइमरी टू सेल्स में हमें कंपैरिजन को हम फाइंड करने जा रहे हैं। ओके, प्राइमरी लिख लीजिए, प्राइमरी सेल आइए, सर्किट डायग्राम मेन है, ये स्टेटर बैटरी आपको ड्रॉ कर रहा हूं, वन वे की रियोस्टेट। ओके, अब यहां से जो ड्रॉ कर रहा हूं, ये जो मेरा पॉइंटर चल रहा है, मार्कर चल रहा है, जो पॉइंट ए और सी को डिनोटेट कर रहा है, इट इज कॉल्ड पोटेंशियल मीटर, विच नेम, पोटेंशियल मीटर। Okay my dear, it is called the primary circuit, it is called the primary circuit. Then one cell are attached and second cell
called Lagrange cell and E2 is called Daniell cell. Which name? E1 is called the Lagrange cell and E2 is the called the Daniell cell. And here is the standard cell. स्टैंडर्ड सेल का EMF वो मैक्सिमम होगा देन E1 और E2 से, because the comparison of the two primary cell, which primary cell? Here Lagrange cell and Daniell cell both are the primary cell. Okay, इसके primary cell के को कंपैरिजन करना है. क्या कंपैरिजन करना है? इसके EMF को कंपैरिजन करना है, क्योंकि पोटेंशियल मीटर क्या करता है? EMF को डिफाइन करता है और पोटेंशियल डिफरेंस की एक्यूरेसी को डिफाइन करता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर क्या फाइंड आउट करने जा रहे हैं? कंपैरिजन ऑफ टू सेल्स. Lagrange cell and Daniell cell, both cells का जो नेगेटिव टर्मिनल है टू वे की, it means 3.2 points are there, x, y and z, and z are connected galvanometer, and galvanometer is connected RB box. Which box? RB box. It means bunch of the resistance का पूरा bunch है उसमें. Okay, and this point is called jockey J. It means jockey J जो है पोटेंशियल मीटर के ऊपर पॉइंट के सेट मैं डॉटेड करूंगा और डॉट करके हमें फाइंड आउट करूंगा कि किस पॉइंट पर नल पॉइंट आएगा. नल पॉइंट, which is point name is null point. Null point it means आपने पूरे सर्किट को जब अटैच कर दिया, अटैच करने के बाद में यदि आपके गैल्वेनोमीटर को टच करते हैं A पर और C पर टच करते हैं और पॉइंटर A पर टच करने पर पॉइंटर लेफ्ट में, C को पॉइंटर को टच करने पर राइट में, इट मींस आपका सर्किट बैलेंस में. अगेन रिपीट कर रहा हूं, जॉकी J को A पॉइंट पर टच करता है तो गैल्वेनोमीटर कहां जाएगा? लेफ्ट में. और जैसे मैं C पर टच करूंगा तो गैल्वेनोमीटर कहां जाएगा? राइट में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने प्राइमरी सेल की K1 की को क्लोज किया और यहां पर XY में एक की को क्लोज किया. जैसे ही क्लोज करने पर बैलेंस चेक करूंगा, फिर वापस यहां से क्लोज यानी कि XZ में से की को ओपन करूंगा और YZ में की को वापस डालूंगा और अगेन सर्किट को चेक करूंगा. बोथ केस में सर्किट यदि बैलेंस में आ रहा है, इट मींस आपका सर्किट अब प्रॉपर्ली बैलेंस में है. अब आप क्या कीजिए, सेकंड पॉइंट, जैसे ही आरबी बॉक्स में से एनी रेजिस्टेंस सपोज 1 ओम 2 ओम का रेजिस्टेंस जैसे ही आपने इसको बाहर निकाला और आपने प्राइमरी जो सर्किट है उसमें की को ऑन किया और सेकंड जो सर्किट है इट इज कॉल्ड सेकंड सर्किट. ओके, इसलिए आप इसको कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में पी सर्किट. Which name? P circuit, and there is the S circuit as for secondary. Okay. अब जैसे मैंने E1 को निकी XZ में डॉट डाला, R1 से रेजिस्टेंस बॉक्स निकाला और इस गैल्वेनोमीटर से, इस जॉकी से गैल्वेनोमीटर पर टच कर रहा हूं. जॉकी से पोटेंशियल मीटर के ऊपर मैं टच करूंगा फर्स्ट, क्योंकि ये पोटेंशियल मीटर में कितने वाट्स है? 10 वाट्स. कितने वाट्स है? 10 वाट्स. आपको अभी 1 दिख रहा है, यानी कि ये मैं 1 नहीं है माय डियर फ्रेंड्स. A से C तक कितने वाट्स है? 10. इसलिए मैंने कहा अपने एनसीईआरटी की बुक में देखना इस पिक्चर को. ओके, तो 10 वाट्स है. मैंने फर्स्ट वायर पर टच किया जॉकी से तो गैल्वेनोमीटर लेफ्ट आया. सपोज मैंने सेकंड पर किया, अगेन लेफ्ट आया. मैंने थर्ड पर किया, अगेन लेफ्ट आया. मैंने फोर्थ पर टच किया और राइट आना शुरू हुआ. ओके, अगेन राइट, फोर्थ किया और आगे किया, फर्दर किया, अगेन राइट आ रहा है. फिफ्थ पर किया, अगेन राइट आ रहा है. सिक्स पर किया, अगेन राइट आ रहा है. एंड 7 लाइन के ऊपर, विच लाइन? 7 जो लाइन है वायर की उस पर टच करते ही गैल्वेनोमीटर जो है अपना डिफ्लेक्शन इस टाइप से करना शुरू करेगा. इट मींस इस वायर के ऊपर आपको नो फ्लक्चुएशन, नो करंट फ्लो, नो कांस्टेंट करंट फ्लो, तो फ्लक्चुएशन आना शुरू होगा और एक ऐसा पॉइंटर आएगा कि गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर फिक्स हो जाएगा मिडल में. ओके, क्योंकि गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर पहले से मिडल में है और आपने उस पॉइंट को टच कर दिया और नो डिफ्लेक्शन आ रहा है, नो फ्लक्चुएशन आ रहा है. इट इज
कॉल्ड द नल पॉइंट। ओके, इट मीन्स वहां पर कोई भी करंट इस टाइम पर फ्लो नहीं हो रहा है। पोटेंशियल क्या हो रहा है? ड्रॉप आउट हो रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप आउट हो रहा है। इसलिए पोटेंशियल ग्रेडियंट यही कह रहा है हमसे कि पोटेंशियल ड्रॉप आउट अक्रॉस द पोटेंशियल मीटर पर यूनिट लेंथ ऑफ द पोटेंशियल वायर। ओके, तो वहां पर पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, उस वैल्यू को आप फाइंड कर लीजिए। हो गया करेक्ट। अब इसके बाद में अगेन आप वापस यहाँ से x और z, क्या रिपीट कर रहा हूँ, x और z में से की को ओपन कर दीजिए, y और z में की को वापस ड्रॉप आउट कीजिए, यानी कि क्लोज कीजिए, और सेकंड P2 आपके सर्किट में अटैच हो जाएगा। सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। फर्स्ट वायर पर टच करेंगे, पॉइंटर लेफ्ट में, सेकंड पर पॉइंटर लेफ्ट में, थर्ड पर पॉइंटर लेफ्ट में, फोर्थ पर भी अगेन लेफ्ट में, 5 पर आएगा राइट में, 6 पर राइट में, 7 पर राइट में, और 8, 9 वायर पर जो है आपके नो डिफ्लेक्शन का फ्लक्चुएशन आना स्टार्ट होगा। तो इस टाइप से हम इसको जज करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ हम फर्स्ट E1 से जज करते हैं। तो सपोज आपकी लेंथ आती है L1, कौन सी लेंथ आ रही है माय डियर फ्रेंड्स? L1। तब जब सर्किट कौन सा हो? ये होगा x और z में की ओपन हो, और यदि आपकी ये डॉटेड लाइन है वो सेकंड पॉइंट के लिए, इट मींस x z में से की को आपने ओपन कर दिया और y z में डाला, तो आपका लेंथ यहां से काउंट होगा L2। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ सकता है कि किस टाइप से हुआ। ये हमारा प्रैक्टिकल भी है, पोटेंशियल मीटर का प्रैक्टिकल भी होगा। ओके, तो आपने फाइंड आउट कर दिया। या बोथ केस में क्या फाइंड आउट करना है? नल पॉइंट। क्या फाइंड आउट करना है? नल पॉइंट। इस नल पॉइंट को आप जो है ध्यान रखें, इसके पोटेंशियल मीटर नो डिफ्लेक्शन के फॉर्म पर काम करता है। कौन? गैल्वेनोमीटर जो है, जब अटैच करते हैं इसके साथ तो नो डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला आता है। तो हम यहाँ पे सर्किट को आप राइट डाउन कर लीजिए, और फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ वो आपको बोल रहा हूँ, राइट डाउन कर लीजिए। नाउ स्टार्ट। तो फर्स्ट पॉइंट लिखिए, लेट द पोजीशन ऑफ द जॉकी, लिख दूं मैं? ओके, प्रॉब्लम है के लिए डाउन। ओके, सबके लिए लेट द पोजीशन of the jockey be J1, which name? be J1, या ओके, इधर J1 कर दीजिए, इधर J2 कर दीजिए। ओके, J1 and length of the wire AJ1 is equal to L1, full stop. If small k means potential gradient is the potential gradient along the wire AB, then at null point, so E1 is equal to KL1। सेकेंड पॉइंट, पहले पॉइंट को राइट डाउन कर लेते हैं, फिर अगेन रिपीट करेंगे। by interacting the plug, कौन सा? 1 वे 2 वे की का plug between y and z, the null point
obtained for cell E2. Which name? Cell E2. Let the balancing length be AJ2 is equal to L2. Then E2 is equal to KL. Again repeat कर रहा हूँ. My dear friends, ये नोट्स सिर्फ और सिर्फ मैं इसलिए प्रोवाइड करवा रहा हूँ क्योंकि इस कोरोना काल में कोविड-19 की जो हमारे पूरे इंडिया के अंदर जो डिजीज फैली हुई है, महामारी फैली हुई है, इससे बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस बंद है और बहुत सारे बच्चे अपने बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उनको नोट्स प्रोवाइड करवाने का जो ये काम कर रहा हूँ, इसलिए आपके लिए नोट्स बना रहा हूँ. आप जो बच्चे काफ़ी विलेज में रह रहे हैं, सिटी में नहीं है या सिटी में है और स्कूल से काफ़ी दूर उनकी डिस्टेंस बन गई है, तो हनुमान सिंह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर आ जाइए. आपके लिए सारे नोट्स अवेलेबल रहेंगे फिजिक्स में. ओके, सो अगेन रिपीट कर रहा हूँ. कंपैरिजन ऑफ द टू प्राइमरी सेल ईएमएफ को हम फाइंड आउट कर रहे हैं. सर्किट को मैंने रिपीट कर दिया है, आपके लिए सर्किट को ड्रॉ कर दिया है. फर्स्ट सर्किट जो है आपका प्राइमरी सर्किट है, सेकंड सर्किट आपका जो है सेकंड वाला जो है सर्किट वो सेकेंडरी सर्किट की नेम से है. फर्स्ट इसकी एक्सप्लेनेशन में पॉइंट में लेट द पोजीशन ऑफ द जॉकी बी J1 and the length of the wire AJ1 is equal to L1 if the K is the potential gradient along the wire AB. आप AB करना चाहते इस पॉइंट को B कर लीजिए AB. then the null point E1 is equal to इसके लिए इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए E1 is equal to KL1 and by implementing the plug कौन सा इस वाला प्लग को इसको करेंगे ओपन और यहाँ करेंगे क्लोज. तो plug between Y and Z, the null point is again open the cell E2. Let the balancing length be AJ2. AJ2 is equal to L2. Then the E2 is equal to जो डिजिट भी आएगा वो K into L2 आएगा. ओके, यहाँ पर आपके पास इस टाइप से हम इसको फाइंड आउट करेंगे. अब हम इसको कंपैरिजन करेंगे, डिवाइड करेंगे. Then point number third, then dividing the equation first and second and we have E1 upon E2 is equal to KL1 upon KL2. so आप इसको K को कैंसिल आउट कर दीजिए तो आपके पास में बचेगा E1 upon E2 is equal to L1 upon L2. ये आपका फॉर्मूला आ गया कंपैरिजन ऑफ टू सेल्स. माय डियर फ्रेंड्स, इसको बहुत एक्सप्लेन करना है. E1 upon E2 इट मींस लैप्लासियन सेल और डेनियल सेल का ईएमएफ उसके लेंथ के अकॉर्डिंग होगा, यानी कि L1 upon L2 की जो वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी? कांस्टेंट. ये वैल्यू कांस्टेंट आनी चाहिए ईच ऑफ केस में, यानी कि आपके ईच ऑफ केस के अंदर वैल्यू फाइंड आउट करनी चाहिए. कैसे ईच ऑफ केस? आरबी बॉक्स से 2 ओम निकाला, उसके लिए पहले E1 और E2 को टेस्ट कीजिए, उसका नल पॉइंट निकालिए. फिर आरबी बॉक्स से आपने 3 ओम निकाला. ओके, आपने 3 ओम निकाला, 4 ओम निकाला, उसके लिए E1 E2 को इस पोटेंशियोमीटर में चेक कीजिए और नल पॉइंट फाइंड कीजिए. आरबी बॉक्स से आपने 5 ओम निकाला, अगेन E1 E2 को पोटेंशियोमीटर में चेक कीजिए और नल पॉइंट निकाल लीजिए. ईच ऑफ केस के अंदर E1 E2 की वैल्यू क्या आनी चाहिए? कांस्टेंट टर्मिनोलॉजी आनी चाहिए माय डियर फ्रेंड्स. तब आपके याद रखिए कंपैरिजन ऑफ टू सेल्स का होगा तो इस टाइप से होगा. ओके, और यदि आपके पास कोई न्यूमेरिकल हो, सपोज आपके पास E1 की वैल्यू है, लेंथ L2 दे रखा है, E2 नहीं दे रखा, तो फाइंड आउट करेंगे. इस फॉर्मूले को टर्न करेंगे. इस फॉर्मूले को मैं और यहाँ डिफाइन कर रहा हूँ कि E1 upon E2 is equal to L1 upon L2. तो जो भी वैल्यू फाइंड करनी चाहे E1 की फाइंड करनी हो तो L1 upon L2 को मल्टीप्लाई कर लीजिए E2 से. ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो आपका जो सेकंड पॉइंट मैं लेके आया था वो आपका सेकंड पॉइंट था कंपैरिजन ऑफ टू प्राइमरी सेल्स को हमने फाइंड किया. ओके, इसके द्वारा हमने डिटरमाइन किया ईएमएफ को
करना है अननोन जब ईएमएफ बैलेंसिंग पॉइंट के अगेंस्ट में लेंथ को फाइंड करने का ये फॉर्मूला आपके सामने मैं लेके आ रहा हूं। ओके, सो अब अपन जो है इसके न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू को देखेंगे। आपके लिए ये थ्योरेटिकली तो बहुत शॉर्ट है, प्रैक्टिकली रूप से थोड़ा सा स्ट्रांग है, लेकिन न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफी स्ट्रांग है। ओके, पोटेंशियोमीटर वायर के अंदर एक कांस्टेंट वोल्टेज 3 वोल्टेज का लगा हुआ है। ओके, इसका ईएमएफ जो दे रखा है वो 1.08 वोल्टेज बैलेंसिंग बाय, एक मैं आपके सामने एग्जांपल को जो है बोल रहा हूं, आप लिख लीजिए। मैं इसको पिक्चर ड्रॉ कर रहा हूं इस एग्जांपल का, क्योंकि ऐसे एग्जांपल हमारे करने बहुत जरूरी है एमसीक्यू के रिगार्डिंग में। ये बैटरी है आपके पास में, ये वन वे की है, ये रियोस्टेट है। ओके, ये आपसे कह रहा है ए से सी आपका पोटेंशियोमीटर है जो आपको नॉन ही है, आपको मालूम है ये सेंसिटिव डिवाइस है, क्योंकि ये करंट को यूज नहीं कर रहा है, नो करंट को ये यूज नहीं कर रहा है, मतलब नल पॉइंट के पॉइंट पर ये रिगार्डिंग पर वर्किंग कर रहा है। ओके, वाई जेड एक्स और जेड, और यहाँ आपका सेंसिटिव डिवाइस गैल्वेनोमीटर और आरबी बॉक्स आप अटैच करना चाहते हो अटैच कर लीजिए और ये चालू कीजिए। न्यूमेरिकल किस टाइप का है? न्यूमेरिकल हमसे ये कह रहा है कि पोटेंशियोमीटर वायर इज सप्लाइड ए कांस्टेंट वोल्टेज, मींस द सप्लाइड ए कांस्टेंट वोल्टेज, यहां से आपको कांस्टेंट वोल्टेज इट मींस कांस्टेंट करंट 3 वोल्ट। ओके, देखिए स्टैंडर्ड वोल्टेज की वैल्यू ज्यादा रहेगी। A cell of EMF 1.08, obviously यहाँ पर E1 और E2 की जो वैल्यू होगी स्टैंडर्ड सेट से मिनिमम होगी, जब भी हम कंपैरिजन कर पाएंगे। यानी कि E1 की वैल्यू आपके पास आई 1.08 वोल्ट। ओके, बैलेंसिंग बाय द वोल्टमीटर ड्रॉप अक्रॉस ये वर्ड आएगा, ड्रॉप वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 200 नीचे 216 सेंटीमीटर ऑफ द वायर। ओके, यहाँ से जब इसको ड्रॉप आउट किया तो ड्रॉप आउट पे जहाँ पर ड्रॉप आउट का मतलब है नोट जो है फ्लक्चुएशन, यानी कि यहाँ पर नल पॉइंट आया तो उसकी लेंथ वैल्यू दे रखी है 216 सेंटीमीटर। ये आपके पास में आ गई है। ओके, फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर, अब आपको पोटेंशियोमीटर की टोटल लेंथ को फाइंड करना है। देखिए अब सर्किट को थोड़ा सा और अपन ध्यान से देखते हैं कि ये वाला पॉइंट है ही नहीं है। ओके, कैसा जोड़ दिया इसको जोड़ दिया इस तरह से। ओके, यानी कि स्टैंडर्ड सेल को और ईएमएफ के कंपैरिजन से स्टैंडर्ड सेल की लेंथ को फाइंड करने का फार्मूला लेके आने वाले हैं। तो हमारे पास में जो फार्मूले का जो पैटर्न बनेगा, क्या था फार्मूला हमारे पास में लिखा हूं, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। ये अभी पढ़ के आए सबने, तो E1 की जगह पर आ जाएगा E और E2 की जगह पर आ जाएगा E1 L अपॉन L1। अब आपको क्या फाइंड करना है? L फाइंड करना है। ओके, वैल्यू पुट अप कीजिए 3, ऑब्वियसली मैक्सिमम है 1.08, ये E की है, L एज इट इज, और इसकी कितनी है 2.16 सेंटीमीटर। हमने आपसे बोला था 2.16 सेंटीमीटर जब आती है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आती है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए 1.08 L इज इक्वल टू 3 इंटू 206, और यहाँ से L की वैल्यू आप फाइंड करेंगे तो आपके पास में 1.08, यानी कि आपके पास में लेंथ की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। और ये जो लेंथ की वैल्यू आपके पास में फाइंड आउट हो रही है उसको हम सॉल्व आउट करेंगे। यहाँ से डेसिमल को रिमूव करते हैं, 100 आ रहा है, और ये वैल्यू आपके पास में कितनी आ रही है तो देख लीजिए 3 की टेबल से इसको कट किया 3 टाइम्स 9 आया, 1 आया, 18 आया, ये आ गया 6, और 6 की टेबल को टाइम किया 6 टाइम, ये हो गया 600 सेंटीमीटर। ये इसकी बैलेंसिंग लेंथ आ गई, टोटल बैलेंसिंग लेंथ। इस टाइप के फॉर्मूले, इस टाइप का एमसीक्यू आपसे पूछा जा सकता है, इसको राइट डाउन कर लीजिए।
ओके माय डियर फ्रेंड्स, आज का वीडियो जो पोटेंशियल मीटर के ऊपर था और कंपैरिजन टू सेल, उसका एक एमसीक्यू मैंने करवाया, मेरी ऑनलाइन क्लास में भी मैंने आपको करवाया है। तो आपको यदि और भी न्यूमेरिकल चाहिए तो जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होएगा, कंपैरिजन ऑफ टू सेल्स के, इंटरनल रेजिस्टेंस के और पोटेंशियल मीटर के बहुत सारे वेरियस मैं फॉर्म जो है न्यूमेरिकल लेके आपके सामने आऊँगा। मैं वापस कह रहा हूँ और अगेन कहता रहूँगा क्योंकि इस बार एमसीक्यू है और एमसीक्यू होंगे वो थियोरेटिकल भी होंगे और न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे। 12th की फिजिक्स के लिए एक ही पॉइंट है इस बार कि आपको थियोरी के साथ साथ में न्यूमेरिकल को भी सॉल्व आउट करना है, तब जाके आपकी फिजिक्स इस बार स्ट्रॉन्ग बनने वाली है। ओके, आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपके सारे डाउट्स को मैं सॉल्व आउट कर रहा हूँ, अभी नहीं भी कर रहा हूँ, कोई मेरे से कमी रह भी रही है तो आप मुझे कमेंट करके कह सकते हैं। काफ़ी कुछ लोग स्टूडेंट मुझसे कमेंट भी करते हैं कि कभी से कन्फ्यूजन हो रहा है, मैं सॉल्व करूँगा क्योंकि ये कोरोना काल में जो आपके लिए जो काम हो रहा है ये डिजिटल इंडिया के पैटर्न पर हो रहा है, इसलिए जितने भी आपको नोट्स प्रोवाइड करवाने हैं मैं करवाऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू, और इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा दें क्योंकि 12th क्लास वाले बच्चों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस है। ओके, सो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अच्छे कमेंट पास करें। कोई डाउट हो तो आप जो है मुझे पूछ सकते हैं, कमेंट करके पास कर सकते हैं, और कोई अदर आपका फ्रेंड है तो उसका भी डाउट होगा वो क्लियर करें।